وہ کیا اور ان کو بتایا کہ آئین کا آرٹیکل 124 ہے 124 جو پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز اپروو نہیں ہو، بجٹ میں شامل نہیں ہو اور سال کے دوران، اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ ایمرجنسی ہو تو آپ نے کرنی ہے، سال کے دوران کوئی اسکیم حکومت سمجھتی ہے اس کو فنڈ کرنا ہے تو اس کی بجٹ سے باہر اجازت دی جا سکتی ہے. اس کو آئین کے آرٹیکل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اجازت دی گئی اور آگے اس میں ایک بائنڈنگ بھی ہے حکومت کے اوپر کہ حکومت جو بھی ایسی آؤٹ سائڈ بجٹ ایکسپینڈیچر کرے اس کو اسمبلی سے اپروو کرائے. ہم نے اس کو اسمبلی سے بھی اپروو کرایا تھا. تو سارے جو قانونی اور آئینی نکات تھے وہ ہم نے پورے کیے. میرا رول اس حد تک تھا اور میں نے اس حد تک نیب کے سوالات کے جواب دیے اور کوشش کی ہے کہ جو آئینی حقیقت ہے ان سے ان کو آگاہ کریں. کہ آپ کو کوئی سوال نامہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور ایک سوال اور بھی لے لیں کہ اس سے ہٹتے کہ کشمور سے آج یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے یہ مویشی منڈی لگی ہے جس میں کی بہت زیادہ خلاف ورزی ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے سوال نامے کی آپ نے بات کی. سوال نامہ مجھے ابھی دیا نہیں ہے لیکن مجھے کہا ہے کہ ہم سوال نامہ بھیجیں گے آپ کو، تو آ جائے گا تو میں جواب دے دوں گا. وہ دے رہے تھے سوال نامہ لیکن اس میں شاید انہوں نے کوئی چینج کرنی تھی تو انہوں نے کہا ہم آپ کو بھیج دیں گے. میں نے کہا جی بالکل. میں دوسرا سوال جو آپ نے کیا یہ میرا خیال ہے وہ زیادہ ضروری ہے. یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی. اس وقت جو وبا سے پوری دنیا اور ہمارا ملک مبتلا ہے جس آزمائش سے، میرا پرسنل خیال اور یہ میں نے نیب کے عملداروں کو جو انہوں نے کہا تھا یہ ضرور میں نے کہا تھا کہ جی آپ کا بڑا دل گردہ ہے کہ ایسے وقت میں بھی آپ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم ساری چیزیں چھوڑ کے اس وبا میں اپنی لوگوں کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ نے بتایا مویشی منڈی کا نہ صرف یہاں بلکہ کئی جگہوں پہ SOPs فالو نہیں ہو رہی اور میں اس کا جو الزام لوگوں کو نہیں دوں گا. میں ختم کر لوں. میں لوگوں کو اس لیے نہیں دوں گا کہ جس طریقے کے مکسڈ میسیجز گئے ہیں اس وبا کے بارے میں کہ آپ ہیں یا میں ہوں. مجھے اگر ایک شخص کہتا ہے کہ بہت خطرناک ہے اپنے آپ کو بچاؤ اور دوسرا کہتا ہے پھر یہ فلو ہے کچھ نہیں ہوگا تم بچ جاؤ گے، زکام ہوگا بخار ہوگا تم بچ جاؤ گے. اور مجھے پتہ ہے اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں لوگوں کو اپنی کرنی ہے لیکن جان سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہے. ہمارے جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے ہم سو کالڈ بڑے پریشان ہیں، ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے پریشان ہونا، لیکن اس غریب کے گھر میں جو ایک کمانے والا ہے اگر وہ دیہڑی دار ہے وہ 1000 روپیہ روزانہ یا 500 روپیہ روزانہ لے کے آتے ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. اگر اس وبا کی وجہ سے اس 500 روپے والے کی ڈیتھ ہو جائے تو ان بچوں کو ساری زندگی، وہ دیہڑی دار تو ساری زندگی کے لیے ان کی گئی نا، اور ایک پیارے کی موت سے جو غرض ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے کہا یہ SOPs فالو نہیں کرنا، میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک یونیفائڈ میسج جائے کہ یہ وبا جان لیوا ہے. آپ نے کہا میں تو ادھر بھی بڑا ڈر کہ میں نے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کی کہ میں کراچی سے آئی ہوں، کراچی میں بہت زیادہ ہے وبا، لیکن شاید آپ کو ہو سکتا ہے پتا ہو، میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد میں کراچی سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے وبا. پر کیپٹا ڈیتھس اور پر کیپٹا انفیکشن اسلام آباد میں کراچی سے ڈبل ہیں. یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. تو مجھے خود ڈر لگ رہا تھا کہ میں اسلام آباد ہر ایک کو جان کر رہی ہے. تو یہ اپارٹ فرام یہ نیب کی انکوائری بڑا اچھا موقع مجھے مل گیا. نارملی میں کوشش کرتا ہوں لیکن آپ سب دوست آگے تھے تو میں نے کہا بات کرنا ضروری ہے. میں آپ سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میسج یہ نیب کا چھوڑ دیں، بھول جائیں. میں نے کیا جواب دیے، جو کرنا ہے جو ہونا ہے وہ. وبا کے اوپر یہ میسج میری طرف سے دوبارہ جانا چاہیے کہ یہ سیریس ہے. ابھی آج کی مجھے اس لیے کہ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اندر تھا، مجھے نہیں پتا کیا پوزیشن ہے. کل ہمارے سب سے زیادہ انفیکشنز آئی تھیں اور آج میرے خیال ہے اس سے زیادہ آئی ہوں گی. ابھی تک رزلٹ نمبرز آگے ہوں گے، NCOC نے دے دیے ہوں گے. سب سے زیادہ نمبرز آئے ہیں اور ڈیتھس بھی جا رہی ہیں. اس کو سیریس لیں. جی
कन्वर्सेशन है और जो सारी मीटिंग्स चल रही हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं, चाहे वो NGO हो, चाहे वो आपकी दवाई हो, तो रास्ते हो सकते हैं। तो ये सवाल जवाब नहीं हो सकते, आपको दूसरी चीज़ें से यहाँ बुलाया जाता है कि आइए और आके हमारे सवालों के जवाब दीजिए। मैं एक अर्ज करूं, आपका बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, इसमें आप लोगों का कसूर है। मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं कहता, मीडिया का कल से मैं अगर उनसे कहूं कि मुझसे लेने फिर के आने से इनकार कर दिया, अब नैब गिरफ्तार कर लेगी, अब फलाना हो जाएगा। आप लोग भी, मैंने तो कई बार मीडिया वालों से हाथ जोड़ के कहा है कि यार ये मुझे नहीं कवर करते आप, ये आज कोई जरूरत नहीं थी। आपने मुझसे पूछना है, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल रहा है। 26 फरवरी से मैं इस पेंडेमिक के ऊपर काम कर रहा हूं। जब फेडरल गवर्नमेंट भी करती है तो सबसे पहले मुझसे ओपिनियन इसीलिए लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ है। एक्सपीरियंस मुझे को ऑब्वियसली मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैंने हर काम डॉक्टर्स, WHO, जो रेलेवेंट लोग हैं उनकी मशावरत से किया है। मैंने मीडिया से भी ये कहा कि यार बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ इस पेंडेमिक पे करो, कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी, ये हमारी जानें बचेंगी। आप शुरू से कह रहे थे कि लॉकडाउन को सख्त करने की जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम उसकी मुखालफत कर रही थी। अब जो ये एकदम हाइप आई है इसमें, और पर 100 जो पहले मरीज आ रहे थे और जो अब आ रहे हैं उसके रेशो में भी बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देता है। क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रवैये की वजह से है? नंबर 1। दूसरा, अब नैब अचानक एक्टिव नजर आई है पिछले 2-3 दिनों में आप लोगों के खिलाफ, इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहला तो वो पेंडेमिक का आपने सवाल किया, बहुत आपका सही सवाल है। हम सब ने मिलकर इस पर फैसला करना है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से यही कहा था कि हम किसी जजीरे में, सिंध कोई जजीरा नहीं है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान के हर शहरी को सिंध आने के लिए आपको न वीज़ा की ज़रूरत है, न पासपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमने एक पूरे मुल्क का सोच के और एक यूनिफाइड स्टांस लेना है, तभी हम इससे बच सकेंगे। हाँ, हमें जो फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है, करना चाहिए था, और ये मैंने 13 मार्च को प्रपोज किया था कि अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद कर दें, और जो हर पाकिस्तानी है जो मुश्किल में, उनको लेके आए, लेकिन उनको प्रॉपर क्वारंटीन और उनका प्रॉपर इलाज, और उसके बाद उनको आने दें। ये नहीं माना गया, और वो चीज़ काफ़ी अप्रैल में जाके इस पर अमल दरामद हुआ कुछ, और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हमें एक यूनिफाइड स्टैंड लेना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। और आपने जो नैब का सवाल किया, मेरा ख्याल है कि सिल्वर लाइनिंग, और जो मेरे फ़ायदा आज हुआ है इस चीज़ से, नैब के सवाल जवाब होते रहेंगे कि मुझे आप दोस्तों से और इस्लामाबाद वालों से मुलाकात की एक मौका मिल गया है। आखिरी सवाल कर लें। यही सवाल कि शहबाज शरीफ साहब कल नैब में पेश नहीं हुए, आप यहाँ पे पेश हो गए हैं, और लॉकडाउन के आप सख्त हामी थे कि लॉकडाउन होना चाहिए। फाइनली आपने वज़ीर आज़म की बात मान ली, तो क्या आपको प्रेशर दिया गया है कि नैब में आए और लॉकडाउन भी वज़ीर आज़म का माने? नहीं, इस ऐसे प्रेशर में मैं अपने, इस प्रेशर में नैब में 100 बार बुलाएं, इस प्रेशर में नहीं आते। मैंने जब बुलाया गया था तो अपीयर होना था, इसलिए हाइप इतनी क्रिएट हो जाती। मैं इनके डर से नहीं, आपके डर से आया हूँ। एक सवाल मैं इनके डर से नहीं आया कि आप लोग जब फिर शुरू कर देते ना तो उस डर से मैं आया हूँ इधर कि सामने हाजिर हो जाऊँ कि अब बस गिरफ्तार होने वाला है, ये होने वाला है। आप लोगों से डरते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। ये बताइएगा कि आप फेडरल गवर्नमेंट से इन टच भी हैं, आपसे मुशावरत भी होती है, मुख्तलिफ फोरम मौजूद है, कितनी ज़्यादा सीरियस लगती है इमरान खान साहब आपको, कितनी ज़्यादा ज़ाती तौर पर सीरियस लगते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि वो पोजीशन चेंज करते आए हैं, आपकी कंसिस्टेंट पोजीशन की। इसी में शायद ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जहाँ जिनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो बाकी जानिब से फौरी तौर पर जवाब आ जाता है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब किस तरह बना दी? क्या हुकूमत पंजाब में जो बड़ी मार्केट है वो बंद करने जा रही, लाहौर फैसलाबाद और रावलपिंडी, क्या हुकूमत की इस तरह? मैं दोनों, पहले जो आपने जवाब दिया, मैं किसी के ज़ाती, मेरा एक आईनी हैसियत है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, अपनी ज़ाती राय नहीं देना चाहूँगा। आपको पर्सनली तो दे सकता हूँ, बट मीडिया पे अपनी ज़ाती राय किसी के बारे में नहीं देना चाहूँगा, वो मुनासिब नहीं होगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरे मुल्क का सोच के और ख़ास तौर पे लोगों की जानों का सोच के अपने फैसले करने चाहिए। आपने सवाल किया, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट करती है। मेरी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, मुझे रिकॉर्ड निकाल के देख लें,
जब भी एनसीसी हुई है और उसमें अगर कोई गलत मैसेज दिया है तो मैंने उसको दुरुस्त करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे मेरा एक जुमला बता दें कि मैंने फेडरल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है या जो फैसला है उसके खिलाफ किया हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। फेडरल गवर्नमेंट के जो गुजरा कराची में आके करते रहे और बाकी चीजें हैं वो आप उनसे जवाब लें, मैं नहीं बनना चाहता। आपने जो कहा सवाल किया, डेफिनेटली हम मॉनिटर कर रहे हैं और जो जरूरत पड़ी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ बंदिशें हो गई थी। एनसीसी में एक फैसला हुआ था, सूबों ने उस फैसले के खिलाफ गए और उन्होंने कुछ मार्केटें और शॉपिंग प्लाजास खोले। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे फिर कहा कि जी बाकी सूबे खोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं खोल रहे। हमने उन्हें बताया एनसीसी में ये फैसला हुआ है कि नहीं खोलना है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया आपने खोलना है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील हमारी ड्यूटी है। हम दोबारा जो भी लोगों की हेल्थ के हवाले से जो फैसले करने करें। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन नाउ यार। आवाम जो है उनका ये तासुर है कि शायद हर जो बहुत हो रहा है इस वक्त जब उसको कोरोना में डाल देते हैं, ये बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं अच्छा आपने सवाल किया, आपको एक सवाल बताऊं। सिंध के अब तक और पूरे पाकिस्तान में ही होगा, मैं मुझे दूसरों को पता नहीं, मैं आई एम श्योर ये होगा, आई एम वेरी श्योर कि यही हो रहा है। एक शख्स जब तक उसका पॉजिटिव टेस्ट नहीं होता उसको हम अगर डेथ अदरवाइज हो, कई डेथ्स ऐसी हुई हैं जो अचानक हुई हैं, बुखार जुकाम और, लेकिन उसका अगर पॉजिटिव टेस्ट नहीं हुआ है पीसीआर टेस्ट तो उसको हम कोविड डिक्लेयर नहीं करते। ये मैं आपको हल्फिया कहूँ कहें लिख के दूँ, एक एक शख्स जिसकी डेथ हुई है सिंध में खास तौर पे, बाकी में भी होगा, खास तौर पे अगर आप लोगों में से कोई चाहेगा किसी के बारे में आपको शक है तो आप मुझे कहिएगा, उस दो वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे। एक भी नहीं है ऐसा, और ये जो लोग कहते हैं वो गलत बात है। स्टील मिल पर एक सवाल है, स्टील मिल और शिबली फराज 10,000 लोगों को निकाला जा रहा है और शिबली फराज कहते हैं कि आप लोग शासन कर रहे हैं। यहाँ एक बात करते हैं कराची जाके दूसरी बात करते हैं। ये सवाल आप उनसे पूछते हैं जिन्होंने स्टील मिल में खड़े होकर कहा था। आपने सबने देखा होगा कि अगर स्टील मिल के मजदूरों को अपना हक नहीं मिला तो मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूँगा। मजदूर इंतजार कर रहे हैं, हम तो मजदूरों के साथ हैं और उनके हक के लिए लड़ते रहेंगे। अब उम्मीद करते हैं जिन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था आपको गवाह किया था मीडिया को, अब पता नहीं मीडिया अपना फर्ज निभाता है या नहीं, वो मीडिया की मर्जी है। थैंक यू।